Well, let's talk about what's happening after BJP swept the Hindi heartland. 3 states in BJP's kitty after celebrations, victory laps and congratulations. The dust is now settled with the focus on the next step for the parties to decide on the chief minister of the state. While it was a saffron sweep in the heartland, in the Hindi heartland, with the BJP winning Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh, the Congress party wrestled power in Telangana. Let's quickly first up start with this inside scoop on what's happening in each of these states as parties huddle to decide on the chief minister who will serve for the next 5 years. It's a clean sweep for the BJP in Madhya Pradesh. Despite being in power for about 2 decades, the BJP won with an overwhelming majority with a clear mandate for the Saffron Party. But who's going to be the chief minister? Will Shivraj Singh Chauhan continue as the CM? Sources say that after such a landslide victory, he remains a front runner to be the chief minister. But the party is also looking at the possibility of other leaders taking the helm. Union Minister Jyotiraditya Scindia, also Minister Narendra Singh Tomar are also in the running for the race. BJP's National General Secretary Kailash Vijayvargiya is also in the race for the next CM. Let's listen into what the people of Madhya Pradesh and several politicians have stated on what they opine on the same. मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अभी तो आगे वाले बताएंगे, मैं क्या मुझसे पूछ रहे हैं। संगठन का काम है। मैंने लीड की है, तो अगर आपके नजरिए से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय श्री शिवराज सिंह जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अभी मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है। निश्चित अभी हमारे लिए माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी हैं। शरद जी, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा आप किसको बनाना चाहेंगे? हमारा भारतीय जनता पार्टी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है और जो नेतृत्व तय करेगा वो साथ स्वीकार है। हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता हैं। Meanwhile, in Rajasthan as well, there is an interesting race. While Vasundhara Raje is the most well-known BJP leader, having served 2 terms as the chief minister, equation with the high command has been volatile. The other names in the race are Arjun Ram Meghwal, bureaucrat turned union minister, Dalit face in Rajasthan Gajendra Singh Shekhawat, Union Jal Shakti minister who enjoys the trust of the Prime Minister Amit Shah, Diya Kumari, a woman leader from the royal family who's seen as an alternative to Vasundhara Raje, and of course Baba Balaknath, who's seen as Rajasthan's Yogi Adityanath. In Telangana as well, it's a very interesting fight. Remember, the Congress is to pick who's going to be the next chief minister. The fight is done, but who will be the next CM? There are also, rumors doing the rounds that the Congress may choose multiple deputy chief ministers. They went past the magic number, decimating the BRS in its own bastion. Before we talk about the Telangana fight, let's quickly open this up with our guest joining us this afternoon. We have Mr. Munindra Pandey, Director Bharat Demographics Research. Mr. Pandey, many thanks for joining us here on Times Now and congratulations. Your predictions were bang on for Madhya Pradesh. First up, tell us, how is it that you reached that figure? What was your figure in comparison to the final results? The BJP, of course, winning with a historic mandate in Madhya Pradesh. Thank you so much to have me here. सबसे आपने जो कहा कि हमारा आधार क्या था यहाँ पे पहुँचने का, तो एक हमारी मेथोडोलॉजी है, लेकिन इस फिगर पे जब हम पहुँचे तो इसको यही फिगर रहेगा ऐसा मानने के लिए कई सारे रीजन थे। जैसे कि हमारे क्वेश्चनर में हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि जो 18 साल की सरकार है उससे मध्य प्रदेश में लोगों ने बदलाव महसूस किया है, और अगर बदलाव महसूस किया है तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बदलाव को लोगों ने महसूस किया था। उसके साथ हमने ये भी देखा कि जो एक लाभार्थी वोट बैंक बना है और महिला वोट बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कास्टिज्म पे वोटिंग ना करके लोग एक वर्ग बन गया है जो लाभार्थी है, और उन्होंने वो चाहे किसी भी जाति किसी भी समुदाय के हों, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया है क्योंकि उनको किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। दूसरा महिला आरक्षण और जो वहां पे एक योजना थी लाडली बहना योजना, इसकी वजह से महिला एक वर्ग के रूप में वोट किया है। अगर हमने ये तक देखा है कि उस घर में अगर ओपिनियन पुरुषों का कुछ अलग है तो महिलाओं का ओपिनियन एकदम अलग था, और ये एक बड़ी वजह रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतनी बड़ी जीत के लिए। जी, और ये काफी बड़ा सवाल है, काफी बड़ी खबर है जो पूरा देश बहुत क्लोजली देख रहा है पांडे जी, क्योंकि
आपने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट कर दिया। आप कह रहे हैं कि लाडली बहना है, ट्राइबल वोट है, ये सारा बीजेपी के पास गया है, जैसे हमारे एनालिसिस, पोस्ट पोल एनालिसिस भी बता रहे हैं। वजह क्या रही होगी ये जो एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया है? इसकी खास वजह क्या है आपके नजर में? निश्चित रूप से इसकी खास वजह मैं आपको क्योंकि बार बार एक ये जो शब्द आता मैं आपको बता रहा हूं कि आज एंटी इनकम्बेंसी वहां पे जब हम गए, और क्योंकि आपने देखा कि हमने ना ही बल्कि नंबर ऑफ सीट नहीं, परसेंटेज ऑफ वोट को भी हमने एग्जैक्टली पकड़ा है अपने एग्जिट पोल में कि कांग्रेस का 40% अराउंड और बीजेपी को 48-47% वोट। तो हम जब गए वहां हमने ये देखा है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी थी। जो गरीब हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े वर्ग में खास तौर से हमने देखा कि लोग इस सरकार को बचाने के लिए गए हैं वोट करने, कि ये सरकार रहे। महिलाओं ने इस सरकार को बचाने के लिए वोट करने के लिए महिलाएं निकली हैं। और वोटिंग के दिन, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश में हमारी पूरी टीम थी, तो हमने देखा कि वोटिंग के दिन सबसे ज्यादा लाइन में महिलाएं दिख रही हैं और अर्ली मॉर्निंग आके लग गई। तो एक ऐसा सेंस हमें मिल रहा था कि महिला और जो गरीब तबका है वो इस सरकार को बचाने के लिए वोट करने निकला। और उस उत्साह में आप देख रहे हैं कि ये अप्रत्याशित वोट शेयर जो बढ़ा है 49% तक, 48 पॉइंट समथिंग जो पहुंचा है, इसके पीछे ये रीजन मुझे समझ में आया। जी पांडे जी, अब अगला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? काफी चुप्पी बनाए रखी थी बीजेपी इलेक्शन से पहले, अब इलेक्शन जीत गई है और ऐसी तरह से जीती है, तो क्या लगता है आपको, मूड क्या था ग्राउंड पे? अब देखिए, अगर मुख्यमंत्री जनरली मुख्यमंत्री के सवाल पर जैसे हमारे क्वेश्चन में था, तो एक कंपैरिजन था कि 15 महीने इसी 5 साल में कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान जी दोनों लोग चीफ मिनिस्टर रहे। तो दोनों के कंपैरिजन में हमने देखा कि लगभग 42% लोगों का मानना था कि शिवराज सिंह चौहान वाज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर एज कंपेयर टू कमलनाथ। उनको 30% लोगों ने बेस्ट चीफ मिनिस्टर बोला। तो उस हिसाब से अगर देखें तो शिवराज सिंह चौहान की छवि में कोई ऐसे निगेटिविटी नहीं है। हाँ, एक सेगमेंट है जो बदलाव की बात कर रहा था और जो शिवराज सिंह चौहान के चेहरा हो या गवर्नमेंट हो। बाकी एंटी इनकम्बेंसी आपने देखी कि इतने ज्यादा मात्रा में मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। तो ये आप कहिए कि एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा या उनकी जो काम करने की स्केल है जो उन्होंने पहुंचाया है, और मोदी जी कि निश्चित रूप से छवि का बहुत लाभ मिला है। ये तो आप हमें शिवराज 9%, 8% शिवराज चौहान और कमलनाथ के बीच की टक्कर की जानकारी दे रहे हैं। जो बाकी प्रोबेबल्स है जिनके नाम हम अभी सुन रहे हैं, आप बात कर लिए प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर, इनमें से आपको लगता है कि कोई मुख्यमंत्री के लिए चुना जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान ही वापस आएंगे, मामा मोदी की जोड़ी को ही वापस लाया जाएगा? अब निश्चित रूप से मामा मोदी की जोड़ी एक सफल जोड़ी मध्य प्रदेश में रही है। हम और आप सबने देखा कि एक सफल जोड़ी, क्योंकि चुनाव राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन जिस तरह से और सीटों का बढ़ना और घटना होता है, लेकिन एक इतना शिफ्ट वोट बैंक में होना बहुत बड़ी बात है। तो ये मामा और मोदी की जोड़ी ही है। पर अब ये तो पार्टी का निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, किसको बनाती है। हाँ, एक पॉपुलर चेहरे, अगर इन चेहरों में से हम देखें तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान का एक पॉपुलर चेहरा मध्य प्रदेश में है। जी, आपको इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले क्या वो जो कहते हैं ना सिक्स सेंस, वो क्या आ रही थी? क्योंकि ना तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ को बचा पाई, ना राजस्थान को बचा पाई। खैर, राजस्थान में तो एक ट्रेंड रहा है दूसरी पार्टी को वोट करने का, तो वही हमने इस बार भी देखा है। पर मध्य प्रदेश से भी काफी आस लगाए बैठी थी कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश से एक्चुअली ग्राउंड में हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि वहां भारतीय जनता पार्टी पीछे है। हाँ, निश्चित रूप से चुनाव के 2-3-4 महीने पहले इतनी बड़ी जीत की तरफ तो नहीं दिख रही थी। तो लेकिन वहां पे कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि 2018 के परिणामों के आधार पर, या जो यहाँ पे जो परसेप्शन बना था वो 2018 के परिणाम के आधार पर बना था। पर अगर हम देखें तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बुरी स्थिति
थी। वहां पे मंदसौर में जो किसान के आंदोलन हुए थे, फिर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के पूरे चंबल और बुंदेलखंड रीजन में, उसके बाद बिंद में सवर्ण आंदोलन हुए, सपाक्स जैसी पार्टियां बनाई गई। तो ये एक बड़ा नेगेटिविटी थी बीजेपी की, जिसको लेकर के परसेप्शन बनाया गया। इस बार ऐसा हमें ग्राउंड पे नहीं दिखा, क्योंकि अगर हम बाय इलेक्शन देखें जो खास तौर से चंबल रीजन में जो हुआ था, अगर हम उसमें देखें तो 2018 के बाद 20 में जब बाय इलेक्शन होता है तो 10% का वोट शेयर तब भी बढ़ा था भारतीय जनता पार्टी का। जी मुनिंद्र जी, आपका 2,30,000 का सैंपल साइज था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स द फिगर दैट यू शेयर्ड, और काफी एक्यूरेट रहा आपका जो प्रेडिक्शन था। तो हमें अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बताइए कि मेन फाइंडिंग्स क्या है। इससे पहले हम आपको जाने दें, क्विकली जस्ट टेल अस अबाउट योर फाइंडिंग्स सर। अच्छा जी, इसमें सबसे जो मेजर हमारे सर्वे में निकल के आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक लाभार्थी वोट बैंक जो बना है वो उनके लिए बहुत है। निश्चित रूप से जो महिला आरक्षण ने एक माहौल बनाया, उसके बाद लाडली बहना योजना का जो लाभ, और इतने बड़े स्केल में सिर्फ लगभग 40 से 50 हजार महिलाओं को, आप कह सकते हैं परिवार में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे लोगों को एग्जीक्यूट हो गई है। ये एक योजना नहीं है, एक लोगों के लिए राहत का एक पैकेज काइंड ऑफ बन गया। तो इसके वजह से, और एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो एसटीज, आप जानते हैं 21% के आसपास वहां पे पॉपुलेशन है आदिवासी समुदाय की, उसमें मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया, उससे एक जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है आदिवासियों में, उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड पैदा हुआ, और उन लोग जो सामान्यतः देखा गया है कि वो कांग्रेस की तरफ हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखे। ये मेन पॉइंट्स थे। तो आप महिलाओं के वोट की बात कर रहे हैं, आप आदिवासी वोट की बात कर रहे हैं, आप युवा वर्ग के वोट की भी बात कर रहे हैं कि इन सब का विश्वास भाजपा में था, और तभी हमने जो नतीजे देखे कल वो देखे। मुनिंद्र जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन टाइम्स नाउ एंड पुटिंग दैट एंटायर स्टोरी इन पर्सपेक्टिव। लेट मी क्विकली इन द मीनवाइल go across to my colleague Govind as well, who continues to stay on with us. Back to who's going to be named the next chief minister. Govind, what are you hearing? Yeah, absolutely. This is the biggest question now for today, but very tough to ensure if any official confirmation comes out. You know that as we earlier talking about anti-incumbency, we have already realized anti-incumbency in Madhya Pradesh, but that is the personal anti-incumbency in fact, and that is exactly why 12 ministers have lost their election, including Narottam Mishra from Datia. So definitely it was surprising that number 2 was in the government, Home Minister, has lost his election from Datia. So that was surprising one, and he was also one of the names in that list of as we are guessing for the next CM, but he is now out. And now rest who are still there in the slot of making the estimation that who will be the CM of Madhya Pradesh if it's not CM Shivraj Singh Chauhan to continue. There are we are already taking the names as Jyotiraditya Scindia, Narendra Singh Tomar, but his image has been done. Will it be reward time for the chief minister, for the incumbent Shivraj Singh Chauhan? Many are asking, because like Munindra Pandey also pointed out, the story has been ongoing for the last so many years, not just the last 4 to 5 years, and several contributions that have been made by the BJP, which have resulted in the women, the tribal community, and also the youth voting in favor of the BJP. Let's see how this plays out. Many thanks, Govind, for joining us with the latest. A quick break. With that, we'll be right back.